Welcome, dear students of 10th standard. Guys, in this very first session, we are going to talk about the Maths 1 first chapter, linear equation in two variable. So, let me write the name. So, before moving to the chapter or before going to the methods to solve the linear equation, let's try to understand what do you mean by the linear equations. और उसके भी पहले let's try to understand what do you mean by equations. So basically equation is a kind of arrangement of algebraic terms. There is a LHS, there is a RHS, left hand side, right hand side. In between them, there will be a is equal to sign. So this type of arrangement is called as the equation. Okay. And LHS and RHS पे क्या रहेगा? तो LHS and RHS पे रहेगा algebraic terms. Okay. क्या रहेगा? Algebraic terms. ठीक है. Now algebraic terms में मेनली हम लोग दो टाइप में डिफरेंशिएट करेंगे इसको. एक रहेगा CVP. Okay. First kind of algebraic term is the CVP, and the second is C. Okay. Only C. Okay. So let's try to understand CVP मतलब इसका मतलब क्या है वो देखते हैं. तो यहाँ पे C का मतलब है, just hold on. C का मतलब है coefficient. I know you are already familiar with these things. V stands for the variable, right? And then the P stands for the power. Now let's talk about the various possibilities of their values. Variable, as we all know, we consider any alphabet from A to Z, capital or small, any alphabet we use. Why do we use the variable? ये पूरे चैप्टर में आएगा, लेकिन अब जब भी बात चली है तो मैं बता ही देता हूँ. टू फाइंड अननोन क्वांटिटीज, टू फाइंड अननोन क्वांटिटीज. ठीक है. तो अननोन क्वांटिटीज को फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली वी यूज द वेरिएबल पार्ट. ओके. नाउ कोएफिशिएंट क्या है गाइस? कोएफिशिएंट कैन बी अ एनी रियल नंबर. इट कैन बी अ एनी रियल नंबर. ओवरऑल अगर मैं बोलने जाऊँ कि कोएफिशिएंट क्या है, तो यार कोएफिशिएंट कोई एक पॉजिटिव नंबर हो सकता है, या कोई एक नेगेटिव नंबर हो सकता है, कोई एक पॉजिटिव फ्रैक्शन भी हो सकता है, या कोई एक नेगेटिव फ्रैक्शन भी हो सकता है. इन चारों में से कुछ भी हो सकता है, राइट. मैं पर्पसफुली जीरो को क्यों नहीं ले रहा हूँ? क्योंकि अगर हम लोग जीरो इंटू वेरिएबल लेंगे तो वो टर्म ही जीरो हो जाएगा, और वो सीधा बिलोंग करेगा ये वाले टाइप से, सेकेंड टाइप से वो बिलोंग करेगा. इसके लिए मैंने जानबूझ के कोएफिशिएंट का वैल्यू जीरो लिया नहीं है. सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नॉन जीरो. ठीक है. ओके. अभी देखते हैं कि पावर के जगह पे क्या हो सकता है. सो मैं पावर का फंडा यहाँ पे लिखता हूँ. जस्ट फॉलो द एरोज नीटली. अगेन पावर के जगह पे भी देर कैन बी एनी पॉजिटिव वैल्यू. ओके. देर कैन बी एनी नेगेटिव वैल्यू. Can be negative value. A positive fraction can be also there, or a negative fraction also can be there. Correct? So again, these four possibilities are there at the place of power. Again, I'm not considering the power as zero. Why I'm not considering so? Because if any variable raised to zero, मैं यहाँ पे चीज तो लिख के रखता हूँ. कोएफिशिएंट वाले केस में भी 0 into x, the answer will come as 0. And power वाले केस में variable raised to 0, the answer comes to be 1. क्लियर है? तो ये इसके लिए हम लोग जीरो का वैल्यू या जीरो वैल्यू यूज नहीं करेंगे, कोएफिशिएंट के जगह पे भी यूज नहीं करेंगे, और पावर के जगह पे भी यूज नहीं करेंगे. सो लेट्स डिस्कस सम एग्जांपल्स आउट ऑफ इट. द एग्जांपल्स. ओके.
So let's say I'm taking here 5x cube. Okay. So simply you will say, sir, x is the variable part. The phi is attached to variable. So that is called as a coefficient. Okay. Guys, always remember there is a hidden multiplication between the coefficient and a variable. Hidden multiplication between coefficient and a variable. And this 3 will be considered as the power. All right. Correct? Let's discuss some more examples. If I'm writing 6y over here, then you will immediately notice there is a variable. Y is your variable, right? 6 is your coefficient. लेकिन भाई पावर कहाँ पे है? पावर अगर कुछ भी नहीं रहेगा तो by default we will consider as 1. We'll consider as 1. ठीक है? So you please keep this thing in your mind. पावर अगर मेंशन नहीं किया रहेगा, so you will consider as 1. Now let's take another example. If I'm writing only z over here, ना अभी यहाँ पे तो खाली वेरिएबल दिख रहा है, यहाँ पे कोएफिशिएंट का भी पता नहीं है, बराबर है, और पावर का भी पता नहीं है. तो दोनों जगह पे भी हम लोग क्या करेंगे, वी विल कंसिडर द कोएफिशिएंट आल्सो एज 1 एंड द पावर एज आल्सो 1. So it will look like 1z1 and your previous one will look like 6y1. Okay, please make a note out of it. All right, now these are the few examples that I took from the algebraic term CVP. Now this second algebraic term or second type of algebraic term you are most familiar with. So खाली कांस्टेंट नंबर रहेगा. सी मतलब क्या है, सिर्फ कांस्टेंट नंबर. तो यहाँ पे सी के जगह पे देर आर नाउ 5 पॉसिबिलिटीज वी कैन कंसिडर. वी कैन कंसिडर अ पॉजिटिव नंबर, वी कैन कंसिडर अ नेगेटिव नंबर, वी कैन, 4 तो वही रहेंगे. ठीक है, 4 तो वही रहेंगे जो पहले थे. अ पॉजिटिव नंबर, अ नेगेटिव नंबर, अ पॉजिटिव फ्रैक्शन, a negative fraction, and there can be another possibility that is the 0. So ये 5 वैल्यू में से कोई भी हो सकता है ओनली सी के जगह पे. दिस इज योर सेकेंड टाइप ऑफ अल्जेब्रिक टर्म. ठीक है, तो ये 2 प्रकार के अल्जेब्रिक टर्म रहेंगे. Guys, always remember while solving the equation we always try to keep the CVP part on the LHS and we always try to keep the आइदर साइड, मतलब आइदर साइड. ठीक है, लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम लोग जब सॉल्व करने बैठेंगे ना, तो वो मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ. अब तुम लोग बोलेंगे कि सर ये सीवीपी को राइट में लिया तो चलेगा क्या, मतलब कैन आई राइट लाइक दिस. तो ऐसे भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गलत देने वाला नहीं है. ठीक है, ऐसे भी चलेगा. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू गाइस, व्हेन वी फॉलो अ स्टैंडर्ड पैटर्न, a standard pattern, as per the standard pattern, what we do is we keep the CVP type of terms, on the LHS and the constant type of numbers or constant type of terms on the RHS. Okay, so you please keep this thing in your mind. Algebraic terms के बारे में देख लिया हम लोग ने. अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है. लीनियर इक्वेशन, तो देखिए लीनियर इक्वेशंस को हम लोग 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए. द वेरी फर्स्ट, an equation, I'm giving you the first definition, the equation having degree 1. So what do you mean by degree, guys? First of all, please remember the definition of degree as well. Degree is the highest power highest power present throughout the equation. ठीक है, this can be your one definition. Then there is another definition where we consider the graph.
So when we try to draw the graph, this is your x-axis, this is your y-axis, and when we try to draw the graph of linear equation that we have to do in 1.2, you will always get a straight line. Oops, this is not look like a straight line. You will always get a straight line. Okay, so the graph of the equation is a straight line, and that's why that equation is called as a linear equation. So this can be your second definition. All right, now let's see, at the third place we are going to talk about the general form of linear equation. General form of linear equation. ठीक है, तो जनरल फॉर्म का पहली बात तो मतलब क्या होता है पता है? जनरल फॉर्म मतलब, पहले मैं फॉर्म दिखा देता हूँ क्या है. दिस इज द फॉर्म ax plus by is equals to c. ax plus by, in some books you will find something like this, ax plus by plus c is equals to 0. तो कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, ठीक है. खाली ये जो भी कोइफिशिएंट है, या फिर कोइफिशिएंट नहीं बोल सकते, कांस्टेंट टर्म जो है उसका खाली साइन यहाँ वहाँ चेंज होने वाला है, अदरवाइज दोनों में कोई फर्क ज्यादा नहीं है, ठीक है. So anyways, for the 10th standard we will follow this, and for the college section we will follow that one which I have showed earlier. So this is the general form of linear equation. तो जनरल फॉर्म का मतलब क्या होता है कि भाई दुनिया का, क्या बोला मैंने, दुनिया का कोई भी लीनियर इक्वेशन उठा के देख लो, वो तुम लोग को इसी पैटर्न में मिलेगा. वो तुम लोग को इसी पैटर्न में मिलेगा. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दुनिया का कोई भी उठा लो, वो तुम लोग को इसी पैटर्न में मिलेगा. करेक्ट है. इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं जनरल फॉर्म. क्या बोलते हैं इसको? जनरल फॉर्म. मतलब इसको खाली देख के ना, इस इक्वेशन को खाली देख के पूरे लीनियर इक्वेशंस का अपने को आइडिया आ जाएगा कि हाँ लीनियर इक्वेशंस ना ऐसे दिखते हैं. ठीक है, इसके लिए इसको हम लोग बोलेंगे जनरल फॉर्म. So let's discuss about some factors over here in this general form. ax plus by is equals to c. So guys, you can see here this. First of all देखो, ये a मतलब क्या है? a, ये जो टाइप है, मैंने अभी दो अल्जेब्रिक टाइप बताया, अल्जेब्रिक टर्म्स सीवीपी एंड सी. तो आप देखेंगे कि ax एक सीवीपी प्रकार का टर्म है और by भी क्या है बोलो? सीवीपी प्रकार का टर्म है. और यहाँ पे a, let me use some different color. यहाँ पे your a is the coefficient, your x is the variable, and the power here is 1. The power here is 1. So slowly हम लोग ना ये फर्स्ट डेफिनेशन की तरफ भी आ रहे हैं. ठीक है. Now here your b is the coefficient, your y is the variable, and again the power is not mentioned, that's why power is 1. And this c is your obviously the second type of algebraic term, that is the constant number. ठीक है, वो तो कुछ भी हो सकता है. ओके, तो अभी एक बात देखिएगा कि इस पूरे इक्वेशन में आपको हाईएस्ट पावर क्या नजर आ रही है? व्हाट इज द हाईएस्ट पावर दैट यू कैन ऑब्जर्व? द हाईएस्ट पावर इज 1. करेक्ट है. 1 से बड़ा कोई पावर है ही नहीं. द हाईएस्ट पावर of the equation is 1, and that highest power is called as degree. So we can say the degree of this equation is 1. So that's why this is also called as a linear equation. ठीक है, तो एक linear equation क्या होता है ये हम लोग ने इन तीन चीजों से देख लिया. उसके डिग्री के बारे में बात किया, उसको उठा के अगर हम लोग उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, वो देख लिया. एक जनरल फॉर्म भी हम लोगों ने देख लिया कि दुनिया का कोई भी इक्वेशन इस तरह से दिखेगा. तो अभी कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं. कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. जैसे कि मैं लिखता हूँ 5x plus 3y is equals to 9. करेक्ट है. सो दिस इज योर ax वाला पार्ट, दिस इज योर by वाला पार्ट, एंड दिस इज योर कांस्टेंट नंबर c. करेक्ट है. यहाँ पे देखो क्या क्या बदलेगा. ए बी सी, ये जो तीन वैल्यूज तुम लोग को दिखाई पड़ रहे हैं ना, ए बी सी कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं. ठीक है, मैंने बताया स्पेशली ए और बी के जगह पे क्या रहेगा बोलो? 4 नंबर रहेंगे. कौन से 4 नंबर? पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव फ्रैक्शन, नेगेटिव फ्रैक्शन. कांस्टेंट नंबर के जगह पे ये 4 लोग भी रहेंगे और 0 भी रहेगा.
ठीक है ना। वेरिएबल वाली जो बात है ना, वेरिएबल की जगह पे भी कोई दूसरे वेरिएबल हो सकते हैं। जैसे अभी मैं ये इक्वेशन देख पा रहा हूँ, 3a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 26। तो यहाँ पे वेरिएबल देखो a और b है, तो ऐसी भी अपेक्षा मत करो हर बार x और y दिखेंगे, कोई भी दूसरे वेरिएबल भी हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन टू योर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस प्रकार से लीनियर इक्वेशन तुम लोग के नजर में पड़ेगा। नाउ क्विकली सी, we will talk about the 1.1. Before that, let me give you the how this chapter is divided. So basically सबसे पहले हम लोग देखेंगे, मतलब इस पूरे थ्रू आउट द चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड्स टू सॉल्व। वी आर गोइंग टू सी सम डिफरेंट, अलग अलग मेथड अपन पढ़ेंगे, डिफरेंट मेथड्स टू सॉल्व लेटवी मतलब जो चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो 1.1 में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है तुम लोग का साइमल्टेनियस सॉल्विंग, और उसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। अलग अलग नाम है देखो, एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। फिर नाइन्थ वाले उसको, नाइन्थ स्टैंडर्ड के जो बच्चे लोग हैं वो बोलते हैं इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड। क्या बोलते हैं? इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड, बराबर है। फिर कोई कोई लोग क्या बोलते हैं उसको, साइमल्टेनियस सॉल्विंग, साइमल्टेनियस सॉल्विंग, बराबर है। तीनों का घुमा फिरा के मतलब एक ही है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाओ। तो ये 1.1 में पढ़ेंगे अपन। 1.2 में हम लोग देखेंगे इक्वेशंस को सॉल्व करने का ग्राफिकल तरीका, ग्राफिकल मेथड, वो भी एक प्रकार का मेथड ही है, ठीक है। फिर 1.3 में हम लोग देखेंगे, 1.3 में हम लोग देखेंगे क्रैमर्स रूल मेथड। क्रैमर्स रूल मेथड बड़ा बड़ा ही सिंपल सा मेथड है इक्वेशंस को सॉल्व करने का। और अभी नहीं, मतलब 10th में ही नहीं, 11th में, 12th में तुम लोग में से कोई अगर इंजीनियरिंग को जाएगा तो वहां पे भी ये क्रैमर्स रूल का मेथड अपने को यूजफुल है। देन 1.4 में हम लोग कोई मेथड देखने वाले नहीं है, बट विल बी हैविंग सम डिफरेंट पैटर्न ऑफ इक्वेशंस, एंड वहां पे वी आर गोइंग टू डू द सब्स्टिट्यूशन, वी आर गोइंग टू डू द सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, 1.4 में। एंड फाइनली जब 1.5 आएगा तो 1.5 मतलब क्या है, एप्लीकेशन पार्ट। एप्लीकेशन मतलब क्या होता है कि एक थ्योरी को, एक मैथ्स को हम लोग ने समझ लिया, अभी हम लोग उसको अप्लाई करेंगे रियल वर्ल्ड में, विल अप्लाई इट इन द रियल वर्ल्ड, ठीक है। मीन्स इन शॉर्ट घुमा फिरा के वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वर्ड प्रॉब्लम्स, तुम लोग के सबके फेवरेट वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस चैप्टर इज बीइंग डिवाइडेड। Without wasting time, let's go to the 1.1. चलिए जी देखिए 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 इज विथ अस। तो एलिमिनेशन मेथड हम लोग देख रहे हैं बेसिकली। मैंने तुम लोग के लिए रूल्स, या रूल्स बोल लो या स्टेप्स बोल लो, मैंने पहले से ही लिख के रखे हैं। तो लेट्स सी दोज रूल्स फर्स्ट ऑफ ऑल। यू कैन टेक सम स्क्रीनशॉट आउट ऑफ दिस, क्योंकि ये बार बार हम लोग को रेफर करने के लिए लगेगा। एंड देखो कोई बड़े डिफिकल्ट रूल नहीं है, जितना हो सका उतना मैंने 3 पॉइंट्स में, मतलब शॉर्ट एंड स्वीट 3 पॉइंट्स में मैंने पूरे मेथड को बिठाया है, ठीक है। सो लेट्स फॉलो द मेथड, ओके। सो व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप गाइस? वेरी फर्स्ट स्टेप, यू कैन रीड फ्रॉम हियर, डिसाइड एनी वन वेरिएबल विच यू वांट टू कैंसल फर्स्ट। इक्वेशन अपने सामने बैठा है, टू वेरिएबल्स आर देयर, एक्स एंड वाई, ठीक है। तो किसी एक को कैंसिल करने के बारे में सोचो, किसको कैंसिल करते बाबा? तो मैंने यहाँ पे डिसाइड किया, सपोज वाई को डिसाइड किया। हाँ, अगर तुम में से कोई बोलेगा नहीं नहीं सर ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, मुझे एक्स को कैंसिल करना है, कर बेटा बिंदास कर, गलत नहीं जाएगा। मेथड फॉलो करो, जो मैं बता रहा हूँ उतना फॉलो करो, सब सही जाएगा, ठीक है।
अभी के लिए, फिलहाल के लिए, सिंस दिस इज द वेरी फर्स्ट सम, लेट्स कंसिडर द वाई वेरिएबल, कि हमें इसको पहले उड़ाना है, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप पढ़ो, क्या है नेक्स्ट स्टेप? चेक द कोएफिशिएंट। सेकंड स्टेप कोएफिशिएंट के बारे में है। रीड द फर्स्ट सब मेथड और सब स्टेप। इफ द कोएफिशिएंट्स आर ऑलरेडी सेम, गो टू द नेक्स्ट स्टेप। देखो यहाँ पे मेरे को मुझे y को कैंसल आउट करना है, लेकिन y का कोएफिशिएंट तो ऑलरेडी सेम होके बैठा है ना। वहां पे मैंने मेंशन भी किया है, हम लोग को साइन के बारे में देखना ही नहीं है। अभी फिलहाल के लिए साइन पे मत देखो, खाली कोएफिशिएंट को देखो। कोएफिशिएंट क्या है? और वो भी किसका कोएफिशिएंट? जिसका अपन ने, है ना, जिसका हम लोग ने डिसाइड किया है कि यार इसको कुछ भी करके पहले उड़ा देना है, इसको, y को, ठीक है ना। तो उसका कोएफिशिएंट देख, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम होके बैठा है। तो अपने को सेकेंड स्टेप करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकेंड स्टेप करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लियरली बोला है इफ कोएफिशिएंट्स आर ऑलरेडी सेम, गो टू द नेक्स्ट स्टेप। चल, अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये जो थर्ड रूल है या थर्ड स्टेप है, वो साइन के बारे में। किसके बारे में? साइन के बारे में। तो अभी यहाँ पे देखो, साइन इसका प्लस है, ऊपर वाले का प्लस है, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में जो टर्म है उसका प्लस है, और यहाँ पे इसका माइनस है, यानी कि साइन अलग अलग है ना। तो यहाँ पे मैंने रूल लिख के रखा है, इफ साइंस आर नॉट सेम, ऐड दोस इक्वेशन। साइन सेम नहीं है, ऐड कर दो। तो इनको अभी ऐड करेंगे हम लोग, और अगर साइन सेम होते तो क्या करते अपन? सब्ट्रैक्ट, ठीक है। लेकिन अभी के इस सिनारियो के हिसाब से साइन आर नॉट सेम, सो ऐड दोस इक्वेशंस। ओके, तो सबसे पहला स्टेप अभी जाकर के आएगा अपना, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 कैसे करेंगे देखिए आगे। 5x plus 3y is equals to 9 plus 2x minus 3y is equals to 12 is equal to is equal to is equal to, तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोई जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है ना, वो कोएफिशिएंट के साथ करना है। तो +3 -3 क्या हो जाएगा? 0 आएगा आंसर। तो मैं लिख दिया यहाँ पे 0y। यहाँ पे देखिए 5 + 2 क्या आएगा आंसर? 7x। और यहाँ पे 9 + 12 कितना आएगा आंसर? 21। सो 0 इंटू वाई ये हो जाएगा 0, तो इसको भूल जाओ। यहाँ पे आएगा 7x इज इक्वल टू 21। मैंने अभी बताया था यहाँ पे कि कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल में देयर इज अ हिडन मल्टीप्लिकेशन, देयर इज अ हिडन मल्टीप्लिकेशन। तो ये x का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, तो जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना होता है उसे अकेला छोड़ो। तो ये 7 मल्टीप्लिकेशन में है, तो वहां पे जाके डिवीजन में जाएगा, 21/7। आंसर क्या आएगा? 7 3s are, so we got the value x is equals to 3. now अभी y का वैल्यू निकलना बाकी है ना, तो what we will do is we can substitute this value x in any one of this equation, जो तुम लोग को सिंपल लगे। तुम लोग बोलेंगे कि सर सेकंड वाला बड़ा सिंपल लग रहा है, क्या अपना अपना चॉइस है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट में डालना है तो फर्स्ट में डालो, सेकंड में डालना है तो सेकंड में डालो, लेकिन कोई भी, मेरी मानो, कोई भी सिंपलेस्ट इक्वेशन चूज करो। हम लोग को मार्क्स से मतलब है, फिलहाल हम लोग को मार्क्स से मतलब है, ठीक है। हम लोग को करेक्ट करके मार्क्स लेके आने हैं। तो जो भी सिंपलेस्ट इक्वेशन रहेगा उसको चूज करो टू पुट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल जो तुम लोग को मिला है। देखो ना, अपने आप अपन ने y को डिसाइड किया था ना कि y को कैंसल आउट करना है। देखो ना, y हो गया कैंसल, y कैंसल हो गया और अपने को वैल्यू मिल गया x का। अब हम लोग ये पुट करते हैं, सो व्हाट वी विल डू, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। देखो ये तो बड़े बड़े सिंपल इक्वेशन है, लेकिन इसके आगे आगे के जो मैं इक्वेशंस लूंगा वो बड़े थोड़े अलग मेथड के या अलग ढंग के इक्वेशंस रहेंगे, ठीक है।
तो जिसमें पुट करना है पहले उस इक्वेशन का वैल्यू लिखूं, देन ये x का वैल्यू पुट करो यहाँ पे। चलो क्या आएगा, 2 × 3, so here 2 3s are 6. Now again जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है उसे अकेला छोड़ो ना, तो इसको अकेला छोड़ना है तो पहले इसको भेजो उधर। क्या आएगा भाई, 12 - 6, so ये 12 - 6 is what, 6. And as I told you, there is a hidden multiplication, no? So this -3 will go in division. What you will get, y is equals to 6 upon -3. So plus minus and 3 2s are. So the answer will be y is equals to -2. So this is how we will get this. We will get these two values of your variable, that is x is equals to 3 and y is equals to -2. अब जाके बोलेंगे कि हम लोग ने इक्वेशंस को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। इक्वेशंस को सॉल्व करना मतलब इक्वेशंस के अंदर जो अननोन वेरिएबल्स है उनके न्यूमेरिकल्स वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव डन विद आवर फर्स्ट सम।